Then next, see the classification of lubricants. Lubricants are classified as 4 types: solid, semi-solid, liquid, and emulsions. Okay, these are the types of lubricants. We are generally used semi-solid, that is grease. ते आपण पाहिलं असेल प्रत्येकाने. Grease is an semi-solid example. Also animal oil, vegetable oil, these are comes into the liquid. The solid is the in form of powder, and emulsions is the oil plus water. Okay, these are the examples we are studying in detail. First of all, write the applications of or functions of the lubricants. Then we will discuss the types. Take down applications oblique functions of lubricants. First, it reduces surface deformation. It reduces surface deformation and metal destruction. Second, it reduces loss of mechanical, electrical or chemical energy. Third, it minimizes local heating of sliding metal surfaces. Their expansion and jamming. Next, it reduces maintenance cost of machine. Sometimes, next point, it reduces maintenance cost of machine. त्यानंतर next, fifth, sometimes act as a seal. For example, grease lubricated bearings. Sealed from
entry of dust, entry of dust, comma, liquid lubricant in piston, liquid lubricant in piston, and cylinder of combustion engine, cylinder of combustion engine prevents leakage of gases, leakage of gases under high pressure, under high pressure means जो कंबशन इंजन है उस कंबशन इंजन में जो सिलेंडर है वो गैसेस का जो लीकेज होगा उसे प्रिवेंट करेगा, ठीक है। उस सिलेंडर में हम लुब्रिकेंट्स अप्लाई करेंगे, ओके, अंडर हाई प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, it makes motion of sliding parts, motion of sliding parts smooth and noise free. Then next point, it acts as a coolant, also act as a coolant. For example, in cutting, comma, drilling of metals, cutting, comma, drilling of metals by tools, by tools. मेटल की कटिंग में या फिर जब हमें मेटल में ड्रिल करना होता है तो जो ड्रिलिंग मशीन्स के पार्ट्स है वो हॉट हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन वी अप्लाइंग द lubricants it act as a coolant for the these tools. Then last is the it avoids corrosion of metallic surfaces. It avoids corrosion of metallic surfaces. Is it over? Yes, ma'am. Okay. Then see the types of lubricants. There are 4 types of lubricants: solid, semi-solid, liquid, and emulsions. Okay, these are the 4 types. Lubricants are classified into these 4 types. So first है हमारा solid lubricant. अब जो solid lubricant होता है वो पाउडर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। When we are applying in powder form, as we are directly applied in powder form, or also it is mixed with the another liquid and then we can apply it. See, solid lubricant के लिए
हमें जो सिचुएशंस होती है या फिर कंडीशंस है वो क्या होती है। फर्स्ट, जो हेवी मशीनरी है विच इज वर्किंग ऑन ए क्रूड जॉब, ठीक आहे, क्रूड जॉब में या फिर म्हणजे रस्त्यात जर काम चालू असेल किंवा मोठी बिल्डिंग असेल तिथं काम चालू असेल तर तिथं ज्या हेवी मशिनरी असतात त्या व्हेरी हाय लोडला असतात आणि लो स्पीड असते त्याचं क्रेन किंवा जेसीबी किंवा रोलर जर पाहिला असेल तुम्ही, बेस्ट एक्झाम्पल यामध्ये रोलर आहे. हेवी मशिनरी मध्ये रोलर जो असतो, आपने देखा होगा रोलर, तो ये एक हेवी मशीनरी है, ठीक है. सो सॉलिड लुब्रिकेंट के लिए कंडीशंस क्या होती है, एक तो हमें हेवी मशीनरी पे ये अप्लाई करना होता है. फर्स्ट इज द हेवी मशीनरी वर्किंग ऑन ए क्रूड जॉब, ओके, एट व्हेरी हाय लोड अँड लो स्पीड. फॉर एक्झाम्पल ए रोलर, ओके, रोड रोलर म्हणतो आपण त्याला. नेक्स्ट, द फिल्म ऑफ लिक्विड or semi-solid lubricant is not formed. Here, when we are studying the types of lubrication process, there is a film is formed. But in solid lubricants, the film of liquid or semi-solid liquid is not formed. क्यों फिल्म तैयार नहीं होगी? क्योंकि हमने सॉलिड या फिर पाउडर के फॉर्म में लुब्रिकेंट्स को लिया. अब ये तो ये पाउडर के फॉर्म है, उसकी वजह से उसकी फिल्म नहीं तैयार होगी, ठीक है, विच इज रिमेन्स इन एज ए पाउडर फॉर्म. फिल्म ना क्रिएट होगी, वो पाउडर के फॉर्म में ही रहेगा लुब्रिकेंट. देन नेक्स्ट इज द पार्ट्स विच इज लुब्रिकेटेड आर नॉट इजिली एक्सेसिबल. जो पार्ट्स हम लुब्रिकेट करते हैं वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है. मींस रोलर के जो पार्ट्स है या फिर जेसीबी क्रेन्स के जो पार्ट्स रहते हैं वो इजीली एक्सेसिबल नहीं रहते. ओके, द पार्ट्स विच इज लुब्रिकेटेड एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट आर नॉट इजीली एक्सेसिबल. नेक्स्ट, कॉन्टेमिनेशन ऑफ लिक्विड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट विथ डस्ट, ग्रीड इज नॉट डिझायरेबल किंवा नॉट अलाउड. आता जे मशिनरीचे पार्ट्स असतील, आता हे हेवी मशीन मध्ये आपण अप्लाय करणार आहोत आपलं सॉलिड लुब्रिकंट. देन कॉन्टेमिनेशन मीन्स ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी. ओके, कॉन्टेमिनेशन मीन्स ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी, एनी इम्प्युरिटी, इम्प्युरिटी लाईक लिक्विड, सेमी सॉलिड और विथ डस्ट इज नॉट डिझायरेबल, अलाउड नाही येते. जे सॉलिड लुब्रिकंट्स आपण यूज करणार पावडर फॉर्म मध्ये त्यामध्ये लिक्विड, सेमी सॉलिड किंवा डस्टचे कॉन्टेमिनेशन म्हणजे त्यामध्ये इम्प्युरिटी ऍड नाही व्हायला पाहिजे, म्हणजे इम्प्युरिटी अलाउड नाही. कॉन्टेमिनेशन इज नॉट डिझायरेबल. देन कंबस्टिबल लुब्रिकंट, लास्ट इज द कंबस्टिबल लुब्रिकंट आर टू बी अवॉइडेड. ठीक है, कंबस्टिबल जो है वो अवॉइड करना होता है हमें ड्यू टू हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर. कंबस्टिबल मीन्स जो इजीली उसका कंबशन हो जाता है. ओके, अगर हमने ऐसा लुब्रिकेंट लिया है जिसका कंबशन फास्ट होता हो, ओके, जब उसका कंबशन होगा वो इग्नाइट होगा, मीन्स फायर कैच करेगा. सो हमें ऐसा लुब्रिकेंट नहीं चाहिए जो इजीली कंबस्टिबल होगा. ओके, कंबस्टिबल लुब्रिकेंट आर नॉट बी अवॉइडेड. क्यों अवॉइड करना होता है हमें? क्योंकि जो हेवी मशीनरी होती है उसका टेम्परेचर हाई रहता है. जो मशीन के पार्ट्स से जिसपे हमने लुब्रिकेंट्स अप्लाई किया है उसका टेम्परेचर हाई रहता है. ओके, हाई होता है. सो बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर देयर इज अवॉइडेड combustible lubricants. Okay, these operating high temperature and pressure also. Hello, हाँ बोला. ma'am. That's why I said the fire point should be low. Previous Yes. lecture. Yes, fire point is not concept of the combustion या फिर combustible. Combustion means suppose मिनरल ऑयल है, ठीक है. अब मिनरल ऑयल जो है वो मिनरल ऑयल हम डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे एज ए लुब्रिकेंट. हियर जो हेवी मशीनरी है उसमें हम लिक्विड लुब्रिकेंट नहीं ऐड करेंगे, सॉलिड या फिर पाउडर के फॉर्म में ऐड करेंगे. जो पाउडर है वो इजीली फायर कैच नहीं करता. एंड
higher point, this point is not a combustion. फायर पॉइंट जो है वो फायर कैच करेगा, ऐसी या फिर ऐसा इसका कंसेप्ट नाही. ठीक आहे. एक मिनिट हा, मी फायर पॉइंटची तुम्हाला डेफिनेशन सांगते. लास्टला आहे त्या पॉइंट, सुरुवातीला आपण ते एक्सप्लेन करूया. येतं पहा, फायर पॉइंट जो असतो ना तो ज्या वेळेस टेम्परेचर इन्क्रीज होईल त्यावेळेस त्याचं कंबशन होईल, लगेच फायर कॅच करेल अशी ती कन्सेप्ट नाहीये. फायर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऍट विच वेपर्स ऑफ ऑयल लुब्रिकंट कैच द फायर. जो लिक्विड है, लिक्विड डायरेक्टली डू नॉट कैच द फायर, इट्स वेपर कैच द फायर. ओके, इट इज द पॉइंट मीन्स इट इज द लोएस्ट. जसं आपण बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मध्ये म्हणतो ना की हे एक टेम्परेचर आहे, सेम इट इज द लोएस्ट. कमीत कमी असं टेम्परेचर की ज्या टेम्परेचरला लिक्विड्सच्या किंवा ज्या लुब्रिकंट्सच्या असतील त्याच्या वेपर्स, या वेपर्स काय करतात तर फायर कॅच करतात. ओके, अँड बर्न कंटिन्युअसली ऍट लिस्ट 5 सेकंड. वेपर्स काय करतात तर या वेपर्स फायर कॅच करतात कमीत कमी टेम्परेचरला. इथं लक्षात ठेवायचं, इथं आपण लोएस्ट टेम्परेचर म्हणतात. ओके, लोएस्ट टेम्परेचरला कॅच करतात ते, हायेस्ट नाही. ठीक आहे, क्लिअर होते का? हा, येस मॅम, बाय डेफिनेशन. फायर पॉइंट आहे ना ते, हा हे थोडं आपलं सुरुवातीला एक्सप्लेन करूया. आता हा पॉइंट आलाय तर आपण काय करू, ह्या तिन्ही चारही डेफिनेशन आहेत ना, क्लाउड पॉइंट, पॉवर पॉइंट, आता एक्सप्लेन करूया आणि लास्टला पण करूया, लिहून घेऊया. ठीक आहे. आता फायर पॉइंट हे समजून घ्या की आपण म्हणतो की आपले जे ऑइल आहे, लुब्रिकंट आहे, त्याचा फायर पॉइंट हाय असायला पाहिजे. हाय असायला पाहिजे म्हणजे ते हाय टेम्परेचर वाढल्यानंतर त्याने फायर कॅच करायला नको. कारण फायर पॉइंट हे जे लुब्रिकंट आहे ते फायर कॅच कधी करतं तर लोएस्ट टेम्परेचरला कॅच करायला पाहिजे त्यांनी, असं आहे. ती कन्सेप्ट अपोजिट आहे. फायर पॉइंट म्हणजे आपल्या लगेच लक्षात असं येतं किंवा आपल्या इमेजिन होतं की वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर को फायर कैच करेगा. ऐसा नहीं, फायर पॉइंट इज अपोजिट कंसेप्ट है. फायर पॉइंट लोएस्ट टेम्परेचर को, जो लुब्रिकंट्स के वेपर है वो वेपर क्या करते हैं, फायर को कैच करेंगे. एंड दिस बर्निंग कंटिन्यूअस एट लीस्ट 5 सेकंड. ये जो बर्निंग हो रहा है वो एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए रहना चाहिए. व्हेन ए स्टँडर्ड फ्लेम इज कम नियर इट. हे कधी होतं जर आपण स्टँडर्ड फिल्म किंवा स्टँडर्ड एखादं फ्लेम जे असेल, गॅस असेल किंवा आपण त्याला बर्निंग दिला असेल तर लिक्विड्सच्या, लिक्विड फायर ऑइल जे आहे, लुब्रिकंट्स ते कॅच करणार नाही. फायर कोण कॅच करतं, जे लिक्विडचं वेपर्स मध्ये कन्व्हर्जन झालेलं असतात त्या वेपर्स कॅच करतात. आणि हे कधी आहे तर मिनिमम टेम्परेचरला आहे. ठीक आहे. आता आपण जे म्हटलं ना रोड रोलर, यामध्ये हेवी मशिनरी मध्ये टेम्परेचर जे असतं ते टेम्परेचर हाय असतं. हाय टेम्परेचरला लुब्रिकंट्स असा पाहिजे आपल्याला की ज्याच्यामध्ये त्यांनी फायर कॅच करायला नको आहे. ठीक आहे, म्हणजे कंबस्टिबल आपल्याला अवॉइड करायचा आहे. कंबस्टिबल जो आपण लुब्रिकंट्स घेतलेला आहे तो कंबस्टिबल लुब्रिकंट्स आपण काय करणार आहोत तर अवॉइड करणार आहोत. ठीक आहे. देन कंबस्टिबल लुब्रिकंट आर टू बी अवॉइडेड. जे पेट घेणारे केमिकल्स आहेत विच इज इझिली कॅच द फायर, ते आपल्याला अवॉइड करायचे. ओके, दीज आर द कंडिशन्स फॉर युझिंग द सॉलिड लुब्रिकंट. डू यू अंडरस्टँड क्लिअरली? येस मॅम. ओके, देन एक्झाम्पल इन दिस इज द ग्राफाइट. See, graphite, it consists of a layered lattice structure. ग्राफाइट से जर तुम्हें डायग्राम पाहिली, उसका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर का होता है. ठीक है, देखिए इस डायग्राम में हमें दिख रहा है, शोन हो रहा है कि जो सेकेंड ग्राफाइट की जो डायग्राम है उसमें सीन हो रहा है कि उसका
अब इसमें हमें 2 लेयर्स शोन है, 2 लेयर्स दिख रहे होंगे. सो वी आर टेल अस दैट ग्राफाइट इज कंसिस्ट्स ऑफ लेयर्ड लैटिस स्ट्रक्चर. ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर लैटिस स्ट्रक्चर होता है. इन दिस स्ट्रक्चर लार्ज नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागोन. जो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम रहते हैं. ठीक है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मेनली 3 and sub is 7 I think. So sp2 and sp3 these are the types of hybridization. यामध्ये in sp hybridization there is carbon carbon triple bond is present. Okay, in sp carbon carbon triple bond is present. In sp2 carbon carbon double bond is present, and in sp3 there is carbon carbon single bond is present. Okay, are you getting? Do you know this? Do you know this concept? sp is sp2 and sp3. Do you know? Yes or no? Repeat. Types of, yes, types of, there are 3 types of hybridization: sp, sp2 and sp3. Okay, sp में क्या होता है? कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल होता है. कार्बन कार्बन मध्ये जर ट्रिपल बॉन्ड असेल तर त्याचं हायब्रिडायझेशन हे sp असतं. डबल बॉन्ड असेल कार्बन कार्बन मध्ये तर ते sp2 असतं. आणि sp3 मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असतो, म्हणजे 2 कार्बन मध्ये एकच बॉन्ड असतो, सिंगल लाईन असते. डू यू नो दिस कन्सेप्ट? Yes. ओके. आता आपला जो ग्राफाइट आहे त्याचं स्ट्रक्चर लेयर्ड आहे हे आपण पाहिलं. नंतर यामध्ये जे कार्बनचे ऍटम्स आहेत ते कसे आहेत म्हणून सांगितलं की sp2 हायब्रिडाइज आहे. ठीक आहे. मग मला सांगा sp2 हायब्रिडाइज आहे म्हणजे कार्बन कार्बन मध्ये कोणता बॉन्ड असेल? सिंगल, डबल और ट्रिपल? Double. येस, व्हेरी गुड. sp2 म्हटलं की डबल बॉन्ड असतो. मग जो ग्राफाइट आहे त्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आहे, अरेंज्ड इन ए हेक्सागोन. उसमें क्या है? लार्ज नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, मींस डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, एंड अरेंज्ड इन हेक्सागोन. ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो हमने कैसे अरेंज कर दिए? हेक्सागोन में. ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा, आई विल शो द डायग्राम. देखिए यहाँ पे जो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है उसमें जो सेकेंड लेयर है एट द बॉटम, जो रिंग दिख रही है उसमें कितने एटम्स है? जो रिंग ऑफ कार्बन है वो कितने एटम्स की है? एक रिंग, सपोज एक रिंग कंसिडर करो और उसमें कितने एटम्स है? या ब्लैक डॉट जो है, ब्लैक डॉट जो आपको दिख रहे हैं वो ब्लैक डॉट कार्बन एटम्स है. तो मुझे बताइए कि उस रिंग में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6. Yes, there, yes, that's why we are told that कि उसमें हेक्सागोन है. ठीक है, हेक्सागोन में 6 कार्बन एटम्स है. So each कार्बन एटम लिंक बाय कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, जो कार्बन एटम है वो टुगेदर कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक किए गए हैं. किस बॉन्ड से हमने उसे लिंक कर दिया है? कोवेलेंट बॉन्ड से. ओके, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर लेयर होता है, उसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, लार्ज नंबर ऑफ है उसके, एंड हमने कैसे अरेंज किया है उसको? हेक्सागोन में अरेंज कर दिए है. ईच कार्बन एटम लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड. जो हमने बताया कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्डेड हमने क्या कर दिए उसे?
डबल बॉन्ड से जो कार्बन एटम से उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? देयर आर number of types of bonds: covalent bond, ionic bond, metallic bond, coordinate bond. Then ionic, mainly there are two types: covalent and ionic. Okay, covalent and ionic, these are the mains. Metallic, coordinate, coionic, these are the subtypes. So covalent bond कैसे फॉर्म होता है and ionic bond कैसे फॉर्म होगा? Do you know this concept? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे तैयार होगा? हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म? शेयरिंग से होता है। Yes, covalent bond is formed by sharing of the electrons between the two atoms. If suppose I have two atoms and these two atoms are when share the electrons between them, then the covalent bond is formed. And how ionic bond is formed? One electron transfers to another atom. Yes, when one atom completely transfer its electron to another, एक तो डोनेट करेगा या फिर उसने गेन कर दिया, उसकी वजह से जब बॉन्ड क्रिएट होगा उसे हम आयोनिक कहते हैं। सो हियर ग्राफाइट में क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड तैयार हो रहा है टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, एक कार्बन एटम्स अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, बट डिस्टेंस फ्रॉम फोर्थ वन इज द मोर देन द डबल। जो दूसरा वाला कार्बन है उससे फोर्थ वाला कार्बन से डिस्टेंस क्या है? उसका डबल है। रिमेम्बर, फोर्थ कार्बन का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो मोर देन द डबल, डबल से भी ज्यादा। एक मिनिट, वेटिंग रूम मध्ये मुले ठीक। Then fourth valence, so fourth valence bond is not fixed. जो फोर्थ वैलेंस बॉन्ड है उसका डिस्टेंस है वो डबल से भी ज्यादा है। सो उसकी वजह से क्या होता है? जो फोर्थ वैलेंस बॉन्ड है वो नॉट फिक्स रहे। फिक्स है क्या? नहीं, वो फिक्स नहीं रहता क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस इज मोर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, बिकम्स लेस। डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा। सो बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन ब्रेक एंड मेक इजीली। जो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड वीक होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। सो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है एंड इजीली मेक हो सकता है। सो बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इजीली। ठीक है, देन two neighboring parallel graphite molecules are 3.7 एंगस्ट्रॉन अपार्ट। जो ग्राफाइट के मॉलिक्यूल है, दो ग्राफाइट के मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस होता है वो 3.7 एंगस्ट्रॉन रहता है। ओके, 3.7 एंगस्ट्रॉन अपार्ट होता है। ए वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम। ठीक है, जो दो ग्राफाइट के मॉलिक्यूल है, दो ग्राफाइट के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग द वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड डिस्टेंस कितना है दोनों मॉलिक्यूल में? 3.7 एंगस्ट्रॉन यूनिट, इतना दो नेबरिंग मॉलिक्यूल में डिस्टेंस रहता है। ग्राफाइट इज सोपी टू टच। देखो उसका जो टच होता है वो सोपी होता है, मीन्स जब हम सोप को टच करते हैं it feels like a slimy. Same, the graphite is soapy to touch because the molecule soapy क्यों होता है हमें, या फिर उसका जो टच है वो स्लिमी सोपी क्यों फील होता है? तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्राफाइट के वो स्लिप होते हैं ओवर ईच अदर बाय मैकेनिकल फोर्स। जब हमें उससे टच करेंगे
इनडायरेक्टली हमें उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होता है। जब मैकेनिकल फोर्स मॉलिक्यूल्स में अप्लाई होता है तो वो क्या होते हैं, स्लिप होते हैं ओव्हर विच अदर. ओके, ओव्हर इच अदर, एकमेकांवरती ते स्लिप होतात मॉलिक्यूल, त्यामुळं ते आपल्याला टचला कसं लागतं, एकदम स्लिमी असं टच होत असते किंवा सोपी असं टच होत. देन इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल and does not get oxidized in air. ठीक आहे, इथं आपण जसं पूर्वी थोडे एक 10 मिनिटापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे की जे हाय लोडचे मशीन्स आहेत, हेवी मशीनरी आहेत, उसमें हम जो लुब्रिकेंट्स यूज करेंगे वो कंबस्टिबल नहीं होना चाहिए. जो ग्राफाइट है वो नॉन कंबस्टिबल है, मीन्स वो फायर कैच नहीं करेगा या फिर इजिली कंबस्टिबल नहीं होता. ओके, एंड इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, ग्राफाइट फायर कैच नहीं करता, इजिली कंबस्टेबल नहीं है, एंड डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर बिलो 375 डिग्री सेल्सियस. 375 डिग्री सेल्सियस के बिलो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता. मीन्स अगर हमारी मशीन है उसका टेम्परेचर सपोज 375 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ चुका है, इतना इंक्रीज हो गए, सो तब भी ये ग्राफाइट है वो स्टेबल रहता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, या दैट मीन्स उसका डिकम्पोजिशन भी नहीं होता. सो इट इज स्टेबल अप टू 375 डिग्री सेल्सियस, फायर कैच नहीं करता वो, 375 डिग्री सेल्सियस तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता. इट कैन बी यूज एज लुब्रिकेंट एट मच हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर 375 डिग्री सेल्सियस तक भी चला गया तब भी ये क्या होता है, स्टेबल रहता है, उसका ऑक्सिडेशन नहीं होता. सो हाय टेम्परेचरला आपण याला यूज करू शकतो. ओके, इट कैन बी यूज एज लुब्रिकेंट एट मच हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन आल्सो एब्सेंस ऑफ द एयर. मीन्स वैक्यूम, वैक्यूम में भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसका यूज कर सकते हैं, and at the high temperature and also at absence of the air. In presence of moisture, graphite will act as good lubricant. Okay, moisture मध्ये graphite good lubricant म्हणून act होता. It can be used in powder form or in suspension. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जे सॉलिडचे lubricants आहेत ते आपण पावडरच्या फॉर्म मध्ये यूज करू शकतो किंवा त्याला लिक्विड मध्ये त्याचं सस्पेन्शन बनवून सुद्धा यूज करू शकतो. देन द सस्पेन्शन जे तयार केलेलं असतं त्याबद्दल थोडं. इफ द सस्पेन्शन ऑफ ग्राफाइट इन ऑइल और वाटर इज यूज्ड विथ द हेल्प ऑफ टॅनिन ऍज ए इमल्सिफाइंग एजंट. सस्पेन्शन जे बनवायचं आहे आपल्याला ते कसं बनवायचं आपण, तर ग्राफाइट जे आहे ते आपण ऑइल मध्ये त्याचं सस्पेन्शन बनवू शकतो किंवा जो ग्राफाइट आहे तो वॉटर सोबत सुद्धा आपण त्याचं सस्पेन्शन बनवू शकतो. आता वॉटर सोबत ज्यावेळेस आपण बनवतो ना त्यावेळेस आपल्याला टॅनिन, टॅनिन हा इमल्सिफाइंग एजंट यूज करावा लागतो. ऑइल मध्ये त्याची गरज नसते, फक्त वॉटर मध्ये सस्पेन्शन बनवताना आपल्याला टॅनिन हे दुसरं एक इमल्सिफाइंग एजंट केमिकल यूज करावं लागतं. डू यू नो द टॅनिन? What is it? Tannin means what? Where it is present? Tannin. Do you hear the word tannin? Do you know what is this? The tannin. माहितीये का टॅनिन म्हणजे काय? कुठं असते टॅनिन? ऐकलंय का शब्द टॅनिन? हॅलो, टॅनिन तुम्ही शब्द ऐकलाय का पूर्वी याआधी? नो मॅम. रिअली? चहा मध्ये काय असते ऐकलंय का? चहा, कॉफी मध्ये काय असते? कोणते केमिकल मेजर असते कॉफी मध्ये? Caffeine and tannin. येस. अँड इन टी? टी मध्ये टॅनिन. येस, टी मध्ये टॅनिन ऍज ए मेजर
कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट असतं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल असतं, कॉन्स्टिट्यूएंट मेन. ओके, so when we are form the suspension of graphite in water, we can use the tannin as an emulsifying agent. जसं मी म्हटलं की इमल्शन तयार करण्यासाठी प्रेशर, टेम्परेचर या कंडिशन आपल्याला चेंज कराव्या लागतात. तसंच मी अगोदर पण प्रिव्हियस लेक्चरला म्हटलं की काही केमिकल्स ऍड करून पण आपण इमल्शन करू शकतो. तर याच्यामध्ये ग्राफाइटचं जर वॉटर मध्ये इमल्शन करायचं असेल आपल्याला तर टॅनिनची गरज पडते आपल्याला, किंवा टॅनिन आपण यूज करतो. नंतर यामध्ये जर ग्राफाइटचं सस्पेन्शन ऑइल मध्ये केलं, लक्षपूर्वक आहे का, एक्झामला विचारलं जातं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है. व्हेन द ग्राफाइट सस्पेंशन इन ऑयल is called as oil dag. Okay, graphite is suspension in oil, it is called as oil dag, and suspension in water is called as aqua dag. Okay, both are the important concepts. The graphite suspension oil उसे हम oil dag कहते हैं, and suspension of water is उसे हम aqua dag कहते हैं. वाटर में अगर हमने ग्राफाइट का सस्पेंशन कर दिया तो एक्वा डैग कहेंगे, एंड ऑयल में कर दिया तो उसे ऑयल डैग कहेंगे. ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जाता है ये सवाल. एंड देन जो ऑयल डैग है इज यूजफुल इन आईसी इंजन. ऑयल डैग हम किसे कहा यूज करते हैं, उसे यूजफुल इन द आईसी इंजिन, इंटरनल कंबशन इंजिन. एक्वा डैग इज यूजफुल इन एअर कॉम्प्रेसर, जनरल मशीन शॉप वर्क, जे मशीनचे शॉप वर्क असतात ते, लॅदेज, and for machinery used in the food industry, उसे में हम aqua dag यूज करेंगे. एंड ऑयल डैग कहाँ यूज करते हैं हम, आईसी इंजन में. ओके, एंड aqua dag also works based in the moist air and carbon dioxide. जो aqua dag होता है वो एक तो हम उसे मॉइस्ट एयर में यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में यूज करेंगे. ओके, बट medium lubrication properties in oxygen and nil lubrication properties nitrogen atmosphere. जो aquadog है, सॉरी aquadag जो है वो moist air में बेस्ट वर्किंग करता है. एंड मीडियम कहा होगा, सो मीडियम जो है ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन में मीडियम वर्किंग होगा उसका aquadag का. एंड जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर है उसमें उसका वर्किंग बिल्कुल नहीं होता, नील होता है. किसका वर्किंग, एक्वा डैग का. एक्वा डैग कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, व्हेन द सस्पेंशन ऑफ ग्राफाइट प्लस वाटर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज एक्वा डैग. व्हेन ग्राफाइट प्लस ऑयल इट इज कॉल्ड एज ऑयल डैग. जो एक्वा डैग है वो मॉइस्ट एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बेस्ट वर्क करता है, ऑक्सीजन में मीडियम करता है, एंड नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नील, उसका कुछ भी वर्किंग नहीं होता है एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन में. ठीक है, दीज आर द डिटेल्स ऑफ द सॉलिड लुब्रिकंट्स दैट इज ग्राफाइट. मी अजून एकदा रिपीट करते, लक्षपूर्वक आहे का. जे ग्राफाइट सॉलिड लुब्रिकंट्स जे असतात तर ते सॉलिड लुब्रिकंट्स हे आपण हेवी मशिनरी मध्ये यूज करू शकतो. तर ते नॉन कंबस्टिबल असायला हवं, त्यामध्ये एखादी कॉन्टॅमिनेशन नको आहे आपल्याला. नंतर त्याच्यामध्ये आपण काय सांगितले, जे फिल्म तयार होत नाहीत, आणि शेवटचं सांगितलं आपण की जे पार्ट्स असतात ते इझिली ऍक्सेसिबल नसतात, म्हणजे सहजासहजी ते वर्क न होणारे असतात. ते हेवी मशिनरीचे पार्ट्स असतात, त्यामुळे इझिली ऍसेसिबल नसतात. यामध्ये आपण ग्राफाइट हे एक्झाम्पल पाहत आहोत. तर ग्राफाइटचं सुरुवातीला सांगायचं की ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर का स्ट्रक्चर होता है. उसके जो कार्बन एटम्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, मीन्स वो डबली बॉन्डेड होते हैं, एंड दे आर अरेंज्ड इन ए हेक्सागोन, मीन्स उसकी 6 कार्बन की रिंग तैयार होती है, विच इज कॉल्ड एज हेक्सागोन. जो डिस्टेंस है उसमें वो दो मॉलिक्यूल्स का जो ग्राफाइट का डिस्टेंस है वो 3.7 एंगस्ट्रॉन यूनिट रहता है. 4th and 1 का जो मॉलिक्यूल ऑफ ग्राफाइट होता है उसका डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से
उसका जो बॉन्ड है वो वीक होता है. जब ये बॉन्ड वीक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो डिक्रीजेस एंड दिस बॉन्ड कैन ब्रेक इजीली and also make easily. Okay, graphite is properties मध्ये सांगायचं, graphite is the soapy to touch because when we touch, we indirectly apply the mechanical force on it, then the molecules of graphite slips over each other, therefore it feels like a soapy, and it is non-inflammable. It is works up to 375 degrees Celsius, and it can be used as a lubricant at much higher operating temperature. हाई टेम्परेचर को भी हम उसे ऑपरेट करने के लिए यूज कर सकते. देन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ग्राफाइट एक्ट एज ए गुड लुब्रिकेंट. मॉइस्चर के प्रेजेंस में भी उसका जो वर्किंग है वो गुड होता है. एंड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लेन केले, जे ग्राफाइट आहे ते आपण पावडरच्या फॉर्म मध्ये यूज करू शकतो किंवा त्याचं सस्पेन्शन पण बनवू शकतो. आता सस्पेन्शन बनवत असताना दोन टाईपचे सस्पेन्शन बनवू शकतो आपण. एक मध्ये म्हणजे ऑइल मध्ये आणि दुसरं म्हणजे वॉटर मध्ये. आपण वॉटर मध्ये पण बनवू शकतो. वॉटर मध्ये जर बनवलं तर त्याला ॲक्वा डॅग असं म्हणायचं. ऑइल मध्ये जर बनवलं तर ऑइल डॅग म्हणायचं. आता ऑइल डॅग जे असतं ते कुठे युजफुल असतं, कुठे युज करतो आपण, तर ते आयसी इंजिन मध्ये युज केलं जातं. आणि जे ॲक्वा डॅग आहे ते इट इज युजफुल इन द कॉम्प्रेसर, जनरल मशीन शॉप वर्क, लैदेज फॉर मशीनरी यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्रीज. ओके, जो एक्वा डैग है वो वर्क्स करता है बेस्ड इन मॉइस्ट एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, मीडियम करता है इन ऑक्सीजन एंड नील. उसका जो यूजफुल है वो नील होता है कौन से एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में उसका जो वर्किंग है वो क्या होता है, नील होता है. दीज आर द डिटेल्स ऑफ द सॉलिड lubricants. Are you understanding it clearly? If you have any queries or doubts, please ask me. Do you understand? Yes, ma'am. ओके, याचं रायटिंग जे आहे आपण ते उद्याच्या लेक्चरला, नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करूया, लिहून घेऊया. ओके, पुट युअर रोल नंबर इन चॅट बॉक्स. Put your roll number in chat box. E01, E03, 04, 05, 6, 7, 8, 11. Put your roll number. E14, put your roll number. E17, Aniket. E23, Nagesh. E24, Pradeep. E26, Saurabh. Nantara E30, Ganesh. 32, Rohit. Put your roll number. All of you put your roll number in chat box. 34, 37, Chetan. 39, Vaishnavi. 41, Megha. 42, Aisha. Put your roll number, Aisha. Priyanka. 44, 45, Dipali. Gayatri, put your roll number. Nantar Ganesh. 52, 53, Onkar. Put your roll number. Harsh. 58, Harsh, put your roll number. E60, Pratik, Patil Pratik. Nantar 62, 63, 64, Shubham. 65, 66, Shuraj. 72, Saki, put your roll number. 73, Adesh. And 74, Pranav, put your roll number, all of you. तुम्ही रोल नंबर टाकत नाही, त्यामुळे मी पार्टिसिपेंटचा त्यामधून स्क्रीनशॉट घेत असते आणि तुमची अटेंडन्स टाकते. पण तुम्ही रोल नंबर पण टाकत चला. मी असं पार्टिसिपेंटचे स्क्रीनशॉट घेत असते, पण सपोज
एखाद्या वेळेस स्क्रीनशॉट घ्यायचे विसरले तर तुमचे अब्सेंटी लागेल. ठीक आहे. विल स्टॉप हिअर. नेक्स्ट लेक्चरला आपण याचं रायटिंग देऊया. ठीक आहे.